Hello everyone, welcome back to my channel. Namaste to all gadgeted officers, IAS, IPS, doctors, surgeon. Knowledge is like a key. The more words you know, the more doors of opportunity open for you. The more words you know, the more doors of opportunity open for you. Welcome back to our daily vocabulary series where we learn powerful words every day to strengthen our English, boost confidence, and perform better in exams and life. Remember, small daily efforts lead to big success. Remember, small daily efforts lead to big success. On this channel, along with vocabulary, you will also find biology lectures for NEET, EMS, UPSC, BPSC, and other exams. English grammar lesson every week, complete current affairs update for UPSC, BPSC, staff selection, commission, state PCS, banking, defense. So stay tuned till the end because today's words can transform your preparation journey. So let's get started. So now I am interested to teach new words which help you to improve in your life. In your spoken English also. C is engrossed. Look at an image. Image को आप देखिए वो एकदम engrossed है. मतलब क्या हुआ है? C is completely absorbed, focus. C is completely वो क्या है? पूरी तरह से absorbed है. C is completely absorbed, focused and deeply interested in something. पूरी तरह से किसी चीज में वो उसमें एकदम पूरी तरह एब्जॉर्ब हो गई है, घुस गई है, फोकस्ड है, डीपली इंटरेस्टेड है इन उस चीज में, उस पॉइंट में जो चर्चा हो रहा है या जो वो कर रही है. वेयर शी गिव्स इट ऑल हर अटेंशन एंड मे नॉट नोटिस अदर थिंग्स अराउंड हर. सी इज इनग्रोस्ड, वो इतनी उसमें एब्जॉर्ब हो गई है, फोकस हो गई है, डीपली इंटरेस्टेड है उस चीज में कि उसे कुछ और नहीं, किसी चीज पे ध्यान नहीं दे रही है, सिर्फ उसी चीज पे नोटिस कर रही है जिसपे वो उस फोकस्ड है. सो सी इज फुल्ली, वो पूरी तरह से क्या है, फुल्ली ऑक्युपाइड बाय हर माइंड और अटेंशन ऑन ए स्पेसिफिक एक्टिविटी, स्पेसिफिक टास्क और स्पेसिफिक कन्वर्सेशन. आप कुछ बोल रहे हैं या आपने उसको कुछ काम दिया है या कोई टास्क दिया है तो उसमें वो पूरी तरह से इनग्रॉस्ड है. So engrossed का मतलब क्या हुआ? It is an adjective. It means so interested in something that you give it all your attention. Engrossed is an adjective. It means so interested in something. किसी चीज में बहुत interested है. That you give it all your 100% attention. किसी काम में पूरी तरह से तल्लीन हो जाना. Engrossed. So meaning of engrossed, to be engrossed means to be completely absorbed or occupied by something to the point to the point where you are unaware of anything else around you. It implies a state of intense focus or deep interest. Engross means आप कंप्लीटली उस चीज में ही तल्लीन हो गए हैं, उस चीज में ही एब्जॉर्ब्ड है, ऑक्युपाइड है, उसी काम में जहां पे आप दूसरी चीज पे आप बिल्कुल फोकस ध्यान नहीं दे रहे हैं. सो इसका मतलब ये हुआ, इट इम्प्लाइज ए स्टेट ऑफ इंटेंस फोकस, स्ट्रॉन्ग फोकस और डीप इंटरेस्ट उस चीज में आप ले रहे हैं. एग्जाम्पल सेंटेंस, शी वॉज engrossed in her book. She was engrossed in her book means she was so focused. आप पढ़ रहे थे, वो पढ़ रही थी, वो बहुत ही फोकस थी पढ़ाई करने में, रीडिंग करने में, और बगल में क्या हो रहा, सी वॉज अनअवेयर ऑफ एनीथिंग एल्स. तो सी वॉज engrossed in her book. She was so focused on reading and that she was unaware of anything else. Next example sentence है, he did not notice her because he was too engrossed in his work. वो कोई आपके घर में आया था, आपने नोटिस नहीं किया, उसने नोटिस नहीं किया था बिकॉज वह था पूरी तरह से अपने काम में तल्लीन था. जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके घर में कोई नहीं आया है और आप बिल्कुल ही उसका ध्यान नहीं दिए. यू डिड नॉट नोटिस हर और हिम बिकॉज यू वॉज टू इनग्रोस्ड इन योर स्टडी. आप पूरी तरह से अपने पढ़ाई में तल्लीन थे. मीन्स his attention, your attention was completely held by his work, by your work, making you unresponsive to
हिज सराउंडिंग्स योर सराउंडिंग्स, मतलब आप इतनी तरह से उस पढ़ा आप अपने पढ़ाई में तल्लीन है, और इस एग्जाम सेंटेंस में वो आप इतनी तरह से इनग्रोस थी, कंप्लीटली उसमें तल्लीन थी कि वो अगल बगल क्या हो रहा है सराउंडिंग से वो बिल्कुल ही उससे मतलब नहीं था, अनरिस्पॉन्सिव। सो दे नाउ नेक्स्ट, दो लोगों के बीच कन्वर्सेशन हो रही थी, सो दे वेर इनग्रोस्ड इन कन्वर्सेशन, सो दे वेर, इट मीन्स दे वर सो इन्वॉल्व इन द डिस्कशन, वो अपने डिस्कशन में पूरी तरह से इन्वॉल्व थे, दैट दे वेर नॉट पेइंग अटेंशन टू अदर्स। दो लोग बैठे हैं, उनके बीच में क्या हो रही है, कन्वर्सेशन हो रही है, और वो बगल में क्या हो रहा है, अगल बगल क्या हो रहा है, वो बिल्कुल ही उस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। सो दे वर इनग्रोस्ड इन कन्वर्सेशन, दे वर नॉट पेइंग अटेंशन टू अदर्स। सो अगेन फ्यू एग्जांपल्स, जितना आप एग्जाम्पल करोगे, जितना आप यूज करोगे, आपको वो सेंटेंस बिल्कुल ही आपको याद हो जाएगा। सी वॉज सो engrossed in the book that she didn't hear the doorbell ring, वो इतना ही पढ़ाई में अपने बुक में रीडिंग में engrossed थी, तल्लीन थी कि डोरबेल बजा उसे पता ही नहीं चला था। he became engrossed in the game and lost track of time, वो पूरी तरह से गेम में इंग्रोस थी और टाइम कैसे बीत गया वो बिल्कुल ही उसे ध्यान नहीं था। दे वर डीप इन कन्वर्सेशन, कंप्लीटली engrossed विथ ईच अदर, वो पूरी तरह से कन्वर्सेशन में डीप कन्वर्सेशन कर रहे थे, उसमें पूरी तरह तल्लीन थे एक दूसरे से। द चिल्ड्रन वर engrossed in the new in their new toys, बच्चे जो थे वो उन्हें जब नया खिलौना मिला तो उसमें पूरी तरह से तल्लीन थे और बहुत ही शांति से घंटों तक खेलते रहे, प्लेइंग क्वाइटली फॉर एन आवर। इट वॉज टू engrossed in my work to notice the commotion outside, मैं इतना ही अपने काम में, या माय डियर एस्पिरेंट्स यू आल्सो ऑलवेज रिमेन टू engrossed in your study, नो नीड टू नोटिस द कमोशन आउटसाइड, बाहर क्या हंगामा हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, नो नीड टू नोटिस द कमोशन आउटसाइड, बाहर का हंगामा नहीं ध्यान देना है। सो engrossed मीन्स उसमें तल्लीन हो जाना। सिनोनिम्स क्या है, सिनोनिम्स मीन्स वही इमर्स्ड हो गए, तल्लीन हो गए, बहुत फोकस्ड है, एब्जॉर्ब्ड हो गए, इंटरेस्टेड हैं आप उस काम में पूरी तरह से। एंथ्राल्ड मीन्स पूरा पूरा ध्यान खींच लेना, मंत्र मुग्ध कर देना, मोहित करना, मीन्स टू होल्ड somebody's interest and attention completely, so ये इसके सिनोनिम्स हुए। आप पूरी तरह इंगेज हो गए, इमर्स्ड हो गए, फोकस्ड हो गए, एब्जॉर्ब्ड हो गए, इंटरेस्टेड हो गए, इंथ्राल्ड हो गए, पूरी तरह से उस काम में आप ध्यान आपका खींच लिया है, इंगेज हो गए। रैप्ट, ये नया वर्ड आया जिसका मतलब वो भी होता है कि किसी, आप उसमें इतने तल्लीन है कि किसी और किसी अन्य बात का पता नहीं चल रहा है, सो रैप्ट। सो इंटरेस्टेड इन वन पर्टिकुलर थिंग, एक चीज में आप जो काम करें उसी पर्टिकुलर थिंग में आप इंटरेस्टेड है, एंड यू आर नॉट नोटिसिंग एनीथिंग एल्स। सो रैप्ट, आप जब पढ़ाई करते हैं या जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो बी रैप्ट इन योर मॉक टेस्ट, आप पूरी तरह उसी में कंसंट्रेट कीजिए, नो नीड टू, आप इधर उधर आपको देखने की जरूरत, नो नीड टू नोटिस एनीथिंग एल्स, नो नीड टू नोटिस योर सराउंडिंग। सो इसका मतलब क्या हुआ, सिनोनिम्स इमर्स्ड, you are immersed, you are focused, you are absorbed, you are interested, you are enthralled, you are engaged, you are rapt. To crack any entrance exam, your ambition, to achieve your ambition. सो सिनोनिम्स दूसरे क्या होंगे, अटेंटिव है, ऑब्जर्वेंट है, फोकस्ड है, ऑल ईयर्स है, इंटेंट है, इंट्रिग्ड है, मीन्स पूरी तरह से अपनी कल्पना या रुचि को, इंट्रिग का दो मीनिंग होता है, अपनी जिज्ञासा को, कल्पना को, रुचि को आकर्षित करके कुछ प्राप्त करने की आप कोशिश कर रहे हैं। दूसरा मीनिंग इंट्रिग का क्या होता है, किसी दूसरे का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करके कुछ षड्यंत्र करना। दूसरा मीनिंग क्या होता है, पॉलिटिकल इंटरेक्ट होता है, जो गलत स्पीच देते हैं पॉलिटिशियन, गलत बातें कहते हैं कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा लेकिन करते नहीं है। सो उस सेंस में भी हम पॉलिटिकल इंट्रिग्स यूज करते हैं। अदरवाइज इंट्रिग का यूज हुआ जब हम किसी चीज की जिज्ञासा, कल्पना, रुचि को आकर्षित कर रहे हैं कुछ प्राप्त करने के लिए, या इसका मैंने शॉर्ट भी बना लिया इस वर्ड का, इंट्रिग का, आप शॉर्ट वीडियो में देख लीजिए। देन डीप है, इन्वॉल्व है, हिप्नोटाइज है, वाचफुल है, कंसियस है, मेस्मराइज्ड है, उस काम में अब इतना आपको अच्छा लग रहा है कि आप मेस्मराइज्ड हो गए हैं। वाइड अवेक है, सजग है, अलाइव है, अलर्ट है, ओपन आइड है, जागरूक है, चौकन्ना है।
So in gross synonyms, you are attentive, you are observant, you are focused, you are using all your ears, intent है, आप intrigued है, deep है, involved है, hypnotized है, वाच उसमें पूरी तरह से hypnotize हो गए, उसी काम में आप मोहित हो गए। वाचफुल है, कॉन्सियस है, मेस्मराइज्ड है, वाइड अवेक है, आप सजग है उस काम करने के लिए, अलाइव है, अलर्ट है, ओपन आइड है, आप चौकन्ना है, जागरूक है उस काम को करने में। ऑल ईयर्स सिनोनिम्स में आए तो ऑल ईयर्स क्या है, एक ईडियम है। ऑल ईयर्स क्या है, एक ईडियम है, जिसका मतलब है कि आप रेडी हैं, आपको एक ईगर है टू लिसन टू समवन और समथिंग विथ कंप्लीट अटेंशन एंड इंटरेस्ट। आप अपने दोनों ही कान से, ऑल ईयर्स मतलब क्या है कि आप पूरी तरह से रेडी हैं, आपको आप ईगर हैं, आपको ये इच्छा है कि दूसरे को समझे और उस पूरी तरह अपना पूरा इंटरेस्ट दिखाएं, आप पूरा अटेंशन दें। सो इसका मतलब क्या हुआ, इट इम्प्लाइज दैट यू आर फोकस्ड एंड फुल्ली इंगेज। आप उस काम पे पूरी तरह से फोकस्ड है, आप उस काम में पूरी तरह से इंगेज है, एज इफ यू एंटायर बीइंग इज डेडिकेटेड टू हियरिंग। आप पूरी तरह से उस चीज को सुन रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल यू कैन से, टेल मी अबाउट योर ट्रिप, आई एम ऑल यस। तो वो आपका दोस्त घूमने गया था तो आप उससे पूछ रहे हैं कि टेल मी अबाउट योर ट्रिप्स, आई एम ऑल यस मीन्स मैं सब कुछ बहुत ही अच्छे से सुनने के लिए तैयार हूँ, फोकस्ड हो, इंगेज हो सुनने के लिए। सो इट मीन्स दैट यू आर वेरी इंटरेस्टेड इन हियरिंग ऑल द डिटेल्स। आपको फ्रेंड मूवी देखने गया है तो टेल मी अबाउट दैट मूवी, आई एम ऑल यस। तो आप पूरी तरह से उसे सुनने के लिए मैं तैयार हूँ डिटेल्स में। ऑलियस एक क्या है, इडियम है, जो कि सिनोनिम किसका है, इनग्रोस्ड का। सो ऑलियस का अर्थ हुआ पूरी तरह से सुनने के लिए तैयार और उत्सुक होना। इसे हिंदी में कान लगाकर सुनना या सुनने के लिए तैयार कहते हैं। कान लगाकर सुनना, इस कहावत का मतलब हुआ पूरी तरह से सुनने के लिए तैयार होना। सो एग्जाम्पल सेंटेंस, टेल मी व्हाट हैपेंड, आई एम ऑल इयर्स। मुझे बताओ क्या हुआ, मैं पूरी तरह से सुन रहा हूँ। कान लगाकर सुना मीन्स पूरी तरह से ध्यान से सुन रहा हूँ। सो इस बात को, ऑल इयर्स मीन्स ध्यान से और रुचि से सुनने के लिए तैयार होना। इफ समवन इज कन्वर्सिंग अबाउट हिज और हर सिचुएशन, यू कैन रिप्लाई आई एम ऑल इयर्स। मैं तुम्हारी स्थिति को समझने के लिए तैयार हूँ, आई एम ऑल इयर्स। मैं पूरी तरह से ध्यान से रुचि से इस चीज को सुनने के लिए तैयार हूँ। सो ऑल इयर्स मीन्स अटेंटिवनेस, ईगरनेस, यू आर लिसनिंग वेरी केयरफुली। ईगरनेस मीन्स आप ईगर हैं, रेडी हैं, इंथुसियास्टिक है टू हियर व्हाट समथिंग हैज टू से। आप रेडी हैं, इंथुसियास्टिक है टू हियर व्हाट्स, जो दूसरा कह रहा है। सो आप फोकस्ड है, यू आर कंसंट्रेटिंग ऑन द स्पीकर जो कह रहा है और द टॉपिक एट हैंड। सो ओरिजिन कहाँ से आया है, ये 18th सेंचुरी में आया था, फ्रॉम द आइडिया दैट हमारे जो कान है, आवर ईयर्स आर द प्राइमरी ऑर्गन फॉर हियरिंग। हमारा जो सेंसरी ऑर्गन है, जो हमारा कान है, आवर ईयर्स आर द primary organ for hearing. When someone is all ear, it means that they are using their entire focus on listening, making their ears the central point of their attention. All ears means अगर कोई यूज कर रहा है तो इट मीन्स वो आप फोकस्ड है, आप अटेंटिव है और उस वो अपना ईगरनेस दिखा रहा है, इंथुसियास्टिक है आपके बात को समझने के लिए। सो इट मेकिंग देयर ईयर्स द सेंट्रल पॉइंट ऑफ अटेंशन। एंटोनिम्स क्या हो गया, बोर्ड है, टाइड है, वेरिड है, जेडेड है, पार्ड है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इंग्रोस्ड मीन आप उस चीज में पूरी तरह से तल्लीन है। इंग्रोस मीन्स आप पूरी तरह से तल्लीन है। बोर्ड हो गया, टाइड हो गया, वेरिड हो गया, जेडेड हो गया, पैल्ड हो गया। बोर्ड हो गया, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, वो मोनोटोनस है, उस चीज उस काम में आप बोर्ड हो गए हैं, तो आप उस चीज को दोबारा करना नहीं चाह रहे, तो इसका एंटोनिम क्या हो गया, बोर्ड। टायर्ड हो गए आप इस चीज से, वियरिड हो गए मीन्स मानसिक रूप से थका दिया ये काम मुझे। जेडेड हो गए, पैल्ड हो गए मीन्स इसका मतलब निकलेगा कि आप उस चीज से बिल्कुल बोर्ड हो गए, मोनोटोनस हो गए, टायर्ड हो गए, जेडेड हो गए मीन्स थका हुआ हो गए। सो दिस इज अबाउट द, एक वर्ड हमने सीखा दैट इज इनग्रोस्ड विच इज एन एडजेक्टिव। और उससे मैंने रिलेटेड हमने कई न्यू वर्ड्स भी सीखे हैं एंड वन इडियम्स भी सीखा है। सो ऑलवेज माय डियर एस्पिरेंट्स रिमेंबर, words are the building block of success. Words are the building blocks of success. The more words you master, the more confident and capable you become. Keep learning really, because consistency is the secret of toppers.
Keep learning daily because consistency is the secret of toppers. If you like today's session, don't forget to like, share, and subscribe to the channel. Many more biology videos, grammar lesson, and current affairs updates are coming soon. Many more biology videos, grammar lesson, current affairs updates are coming soon. So all designed to crack your NEET exam and AIMS exams, UPSC, BPSC, State PCS, Staff Selection Commission, Banking and Defense exam. So my dear aspirants, stay motivated, stay consistent, and let's keep growing together. I will try to upload 3 vocabulary every week. So thank you for watching.